permutations. Now, whatever is required, this particular chapter to start, we have already done. Now we'll directly come to this topic, permutations. Now, just note down everyone carefully. What is permutations? Permutations is also called arrangement. ठीक है, अरेंजमेंट को भी हम लोग परम्यूटेशंस बोल सकते हैं. फाइंड द परम्यूटेशंस और फाइंड द अरेंजमेंट्स, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. Now let us take one example. Let's take a word ant, A-N-T, ant. Now suppose you have this word ant, and suppose if I ask you, what is the total number of words formed from this word ant? See, I'll explain you different possible ways of solving this particular sum. And I'll try to relate this particular question with permutations as well as the fundamental law of, basic law of multiplication. जो मैंने multiplication रूल बताया था, उसका मैं उससे और permutations को मैं relate करूंगा. तो इस चीज को ध्यान से एक बार नोट करना. So everyone note down here. So suppose you have this word ant, and if I want to ask, if my question is, what is the total number of words formed from the word ant? See, if I keep A first, we have got two words, that is A-N-T, ant, A-T-N. This is the second word formed using the letters of the word ant. If the word begins with N, we have got more two words because N-A-T, nat, whatever meaning जो भी हो, N-T-A, दो हो गया. If the word begins with T, we find that we have got T-A and tan, clear, and T-N-A. So if you find, you see, you have three letters in the word ant. So once मैंने उस letter का word को, उस word को मैंने A से begin किया, तो A से begin करके कितना words form हुआ? दो. मैंने उस first letter को N से start किया, तो वापस two words form हुआ, not two letters, sorry, two words. अगर मान लो मैं उस वर्ड को टी से स्टार्ट करता हूं तो वापस से दो वर्ड्स फॉर्म हुआ. सो वी हैव 2 + 2 + 4 becomes how much? 6. So overall what we are doing, if you try to understand here what we are doing, see the first position, listen here, the first position of this word, three-lettered word, can be either filled with A, or it can be filled with N, or it can be filled with T. So how many options we have? We have got three ways of filling this particular position. इस पोजीशन को फिल करने का हमारे पास, अगर मान लो इसको मैं पोजीशन 1 लेता हूं, इसको मैं पोजीशन 1 लेता हूं, तो इस पोजीशन को फिल करने का हमारे पास 3 वेज है. एंड तो एक बात बताओ, इस सेकंड पोजीशन को फिल करने का कितना वेज है? वी हैव गॉट अगेन 2 वेज. सॉरी, व्हाई 2 वेज? बिकॉज अगर मान लो मैं इस तीन में से किसी एक लेटर को यहां पे मैंने यूज कर दिया है, तो इस सेकंड पोजीशन को फिल करने का हमारे पास कितना वेज है? ऑप्शंस कितने हैं? 2 वेज. बिकॉज अगर मान लो मैंने ए यूज कर लिया है, तो बाकी सेकंड पोजीशन को फिल करने का हमारे पास या तो एन है या तो टी है, या तो एन है या तो टी है. सो वी हैव गॉट 2 वेज. सो अगर मान लो मैंने इस दोनों में से किसी एक को यूज कर दिया है, तो इस थर्ड पोजीशन को फिल करने का हमारे पास कितना वेज है? It is 1 way, and the answer is what? 3 into 2 into 1 is equal to what? 3 factorial, and the answer is equals to 6. Is this clear? So, and we are finding that 3 into 2 into 1, that is 6, that is 3 factorial, can also be written as 3p3. If you remember last day's topic, you will understand that, याद करो मैंने last day बताया था कि npn का मतलब क्या होता है? npn means n factorial. Do you remember last day's topic? npn is equals to n factorial by, because the formula is n factorial by n minus n, that is 0 factorial. 0 factorial is equals to 1. So npn is equals to what? N factorial. Is this clear? So you can use basic law of multiplication. Also, you'll get the same answer. If you use permutations, then also you'll get the same answer. If in this process, if you try to analyze properly, you'll find that this formula NPR, in this formula NPR, what does N stands for? N stands for total number of letters, total number of items, we can say. What does R stands for? R stands for
number of items selected at a time. ठीक है, मतलब पूरा n चीज में से एट ए टाइम कितने लेटर्स को, नंबर ऑफ आइटम्स सेलेक्टेड एट ए टाइम टू बी अरेंज्ड. तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि पूरा 3 लेटर्स में से एट ए टाइम मैं कितने लेटर्स को चूज करके वर्ड फॉर्म कर रहा हूं. जो एक वर्ड के बारे में मैं बात कर रहा हूं उस एक वर्ड में कितना लेटर्स है बताओ तो 3 लेटर्ड वर्ड. मैंने बोला ना, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम द परम्यूटेशन, मतलब अरेंजमेंट ऑफ दिस 3 लेटर्ड वर्ड एंड. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि टोटल 3 लेटर्स में से एट ए टाइम उस पूरा एन में से हम लोग कितने लेटर्स को चूज कर रहे हैं, पिक कितने कर रहे हैं, सेलेक्ट कितने कर रहे हैं, पूरा का पूरा 3 लेटर्स सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे और उसको अरेंज कर रहे हैं. तो एक बार में एंड से मैंने 3 लेटर को चूज किया और देखा मैंने कितने सारे वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, 6. सो अगर हम फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल को देखें तो इसके हिसाब से भी आंसर 3 फैक्टोरियल है व्हिच इज इक्वल टू 6. और इस कांसेप्ट को अप्लाई करें तो भी आंसर क्या है बताओ तो 6, because 3p3 is equals to what, 3 factorial which is equals to 6. And the calculation we have seen in the last class that npr का मतलब होता है n factorial by n minus r factorial, where now you know that अगर हम इसका एप्लीकेशन देखें तो तुम लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि n cannot be less than r. Why? Because the number of items you are selecting at a time to arrange, number of items you are selecting at a time which is to be arranged cannot be more than the number of things you have. तुम्हारे सामने जितना चीज है उसमें से ही तो तुमको सेलेक्ट करके अरेंज करना है ना, तो वो कैसे ज्यादा हो सकता है इनसे. सो दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ r will be less than or equal to the value of n, or we can say the total things we have in front of us जहां से मुझे सेलेक्ट करके उसको अरेंज करना है, it has to be, the total things has to be more than the number of things we are selecting at a time. So in very simple language you can say that r means number of items selected out of n. ठीक है, r में से n में से जितने चीजों को हमको सेलेक्ट करके अरेंज करना है वो r डिनोट करता है. इसीलिए r का वैल्यू हमेशा लेस होगा n से, बराबर भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जितने मेरे पास सामने चीज है मैं उस पूरे चीज को एक बार में हम सेलेक्ट करके अरेंज करना चाहें. जैसे इस समय क्या है, एंड वर्ड में 3 लेटर्स था, मैं तीनों लेटर्स को चूज किया, 3 में से तीनों को चूज करके अरेंज किया. सो दिस इज द वे दिस फॉर्मूला इज, ये फॉर्मूला इस तरह से काम करता है. मैं इस एंड को मैं एक और तरीके से तुम लोगों को समझाना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम मेथड. ट्री डायग्राम बोलते हैं उसको. क्या है ध्यान देने का, अगर हम ध्यान से नोट करें तो पहला लेटर्स को, पहला पोजीशन को फिल करने का हमारे पास कितने चॉइसेस है, 3 चॉइस, 1 2 3. देखो एक बार ध्यान से, या तो ए, या तो एन, या तो टी. फर्स्ट पोजीशन को मैं इसको फर्स्ट पोजीशन मान रहा हूं, दैट इज अपन यू, लाइक यू टेक दिस एज द फर्स्ट पोजीशन, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. इस पोजीशन को फिल करने का हमारे पास 3 ऑप्शंस है. देखो एक बार ट्री डायग्राम में 3 ऑप्शंस है. या तो उस जगह पे ए आ सकता है, या तो उस जगह पे एन आ सकता है, या तो उस जगह पे टी आ सकता है. क्लियर? ऐसा करने के बाद सेकंड पोजीशन पे हमारे पास कितने चॉइसेस है, सिर्फ 2 ही चॉइस. क्यों? क्योंकि एन ऑलरेडी फर्स्ट जगह पे आ गया, तो सेकंड जगह पे हमारे पास चॉइसेस 2 हैं. वो 2 चॉइस क्या क्या है, या तो टी आ सकता है या तो एन आ सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो 2 चॉइस है. अगर पहले जगह पे एन आ गया तो दूसरे जगह पे या तो ए आ सकता है या तो टी आ सकता है. अगर पहला जगह पे टी आ गया तो या तो सेकंड वाले जगह पे ए आ सकता है या तो एन आ सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? समझ में आया बात? अब देखो, तो अगर हम ध्यान से देखें इस पहला और दूसरे जगह को, अगर हम देखें तो पहला और दूसरे जगह को हम लोग कितने वे से फिल कर सकते हैं. देखो एक बार, 3 2 जा 6 वेज इनटू, अभी तीसरे जगह को फिल करने का हमारे पास कितने वेज है, एक ही वेज है. कैसे? अगर मैंने पहला जगह को ए से फिल कर दिया, दूसरा जगह को टी से फिल कर दिया, तो तीसरा जगह के पास ऑप्शन क्या है, सिर्फ एन. ए एन टी, एन ए टी, एन टी ए, टी ए एन, टी एन ए. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सो देखो ऑल टुगेदर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, कितना वर्ड्स हो गया, ए टी एन, ए एन टी,
NAT. सो आई अंडरस्टैंडिंग, इस तरह से हम ट्री डायग्राम से भी हम लोग देख सकते हैं, और इट्स वेरी मच क्लियर दैट पहला पोजीशन को फिल करने का ऑप्शंस 3 है, लेकिन एक बार में उस जगह पे या तो A आ सकता है, या तो N आ सकता है, या तो उस जगह पे T आ सकता है। समझ में आया बात? ऐसा करने के बाद दूसरा पोजीशन पे हमारे पास ऑप्शंस है 2। तो अगर पहला पोजीशन पे A आ गया है तो दूसरा पोजीशन पे 2, N आ गया तो 2, T आ गया तो 2। एक को 2 के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, एक को 2 के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, एक को 2 के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, तो कितना आ गया 3 into 2। एंड तीसरा पोजीशन को फिल करने का हमारे पास एक ही वे है। देखो इधर 3 है, इधर सिर्फ 2 है, हर एक के साथ 2 है, हर एक के साथ 2 है, बिकॉज 3 into 2 मीन्स व्हाट? याद होगा लास्ट दिन मैंने बताया था 3 into 2 का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट 2 plus 2 plus 2, मतलब ये 3 बार। देखो 2 2 2 3 बार है, 3 के साथ है, 1 2 3 के साथ है। समझ में आया? तो बात ये बहुत सिंपल तरीका है, इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल से भी हम समझ सकते हैं, और हम देख रहे हैं कि आखिरकार करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, दिस इज 3 factorial is equals to what? This NPN, because NPN is equals to n factorial, and we find that it is equals to, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लास्ट डे हम लोगों ने देखा था कि NPN क्या होता है, n factorial। तो यहाँ पे जो 3 factorial है, it's equals to what? 3 things we have, टोटल हमारे पास सामने 3 चीजें, एट अ टाइम कितने चीजों को हम सेलेक्ट करके अरेंज कर रहे हैं? 3 चीजों को। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पूरे चीज को ऐसे दे, ध्यान से देखना एक बार। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। हम इस पूरा चीज को, फॉर्मूला को ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हाट इज दिस NPR? NPR इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ, ध्यान देने पर यहां पे सबसे पहला प्रोसेस आता है, हम लोग यहां पे कर क्या रहे हैं, हम लोग R चीज को पहले सेलेक्ट कर रहे हैं, R थिंग्स सेलेक्टेड, selected out of n, okay, out of n, and arrangement of R things। मतलब हम लोग पहले क्या करें, पहले हम लोग पूरा n चीज में से R चीज को सेलेक्ट कर ले, और सेलेक्ट करने के बाद उस R चीज को हम लोग अरेंज कर रहे हैं। और ये पूरा जो फॉर्मूला है, ये पूरा फॉर्मूला दैट इज NPR, ये क्या दे रहा है? इट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ arrangement of R things selected at a time out of n things। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला क्या दे रहे हैं, ये क्या है, ये चीज है NPR। ये क्या है? ये नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ R things selected at a time out of n things। समझ में? तो ये फॉर्मूला का यही काम। तो एक बार मैं 2-4 और एग्जांपल ले लूं, आई थिंक ये सब कॉपी करना है, मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब सी, तो आखिर में हो क्या रहा है, जैसे लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दिया था, याद करो, जब मैंने ये फॉर्मूला समझाया नहीं था, एंड दैट्स व्हाई जस्ट हम पॉज करके पहले मैंने फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन दिया कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं, और मैं वो चीज वापस से रिपीट कर रहा हूं। से मान लो हमारे सामने टोटल ABCDE, टोटल हमारे सामने 1 2 3 4 5 लोग खड़े हैं बाहर, और मेरे पास मान लो यहाँ 3 ही सीट्स है। तो हम क्या करेंगे, इतना दिमाग हम नहीं लगाएंगे, इतना पिक्टोरियली ऐसे लिख के नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, हमारे सामने टोटल कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, n क्या है? 5 है। मुझे एट अ टाइम कितने लोगों को चूज करना है? 3 लोगों को चूज करना है, और उस 3 लोगों को चूज करके अरेंज करना है। तो ये पूरा फॉर्मूला से मुझे मिल जाएगा आंसर। तो क्या होगा, यू नो दैट 5 की 3 ways, 5 into 4 into 3, और देखा जाता है कि पूरा 5 into 4 into 3 अगर तुम मल्टीप्लिकेशन रूल के साथ कनेक्ट करो इस चीज को, तो हो वही रहा है। देखो एक बार, पहला जगह को फिल करने का हमारे पास 5 ways है, उसमें से एक चीज तो यहाँ यूज हो गया है, दूसरा जगह को फिल करने का 4 ways है, 4 में से एक यूज हो चुका है, तो तीसरा जगह को फिल करने का हमारे पास कितना वेज बचा? 3 ways है। So 5p3 same as, I mean, is equal to 5 into 4 into 3, which is same as what we have done in multiplication rule. याद है ना, multiplication rule and addition rule, वही चीज है। So the answer is how much? 5 4 जा 23 जा 60 ways। मतलब हम लोग पूरा, अगर हमारे सामने पूरा 5 लोग हैं और मुझे 3 सीट पे मुझे बैठाना है, तो हम कितने वे से कर सकते हैं? पहले हम 3 को सेलेक्ट करेंगे, प्रोसेस में क्या है देखो, परम्यूटेशन में क्या है? सिलेक्शन एंड फर्दर अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्टेड आइटम्स, सिलेक्टेड चीजों को हम अरेंज करें फर्दर। समझ में? अगर मुझे मान लो 5 में से 5 को मुझे सेलेक्ट करके अरेंज करना, मतलब मेरे पास मान लो 5 सीट है और 5 लोग हैं, इस 5 सीट पे 5 लोगों को बिठाना है,
तो हम क्या करेंगे, 5 में से पांचों को सेलेक्ट कर लेंगे. इट इज 5p5 which is 5 factorial which is 120. आई होप इट इज क्लियर एवरीवन. तो एक बात बहुत क्लियर है कि जो नंबर ऑफ आइटम्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो n से बड़ा नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है n का या लेस हो सकता है. समझ में आया? तो बस ये चीज है, ये पूरा चैप्टर. अब हम लोग इसके ऊपर हम लोग सम स्टार्ट करेंगे, दैट इज e का नंबर 2. बट e का नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले e का नंबर 1 का मुझे तुम लोग आंसर बताओ. तो यस, what is the answer of e ka number 1? And I'll advise everyone to answer me using permutation concept. Okay, fine. Multiplication रूल भी यूज कर सकता है तुम लोग, लेकिन तुम लोग मुझे परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला को यूज करके बताना. तो एक तरह से हम लोग के लिए एक फॉर्मूला है जहां पे हम लोग यूज करके हम लोग ये सारी चीज को कर सकते हैं. ओके, तो इसीलिए पहले देखो सिस्टमैटिक वे, फैक्टोरियल, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन रूल, फिर परम्यूटेशन का फॉर्मूला. आज हम लोग क्या कर रहे हैं, परम्यूटेशंस का एप्लीकेशन कर रहे हैं. तो आंसर पहला वाला क्या हो जाएगा, 5p3. कैसे होगा 5p3? पूरा 5 लोग हैं और 3 वैकेंट सीट्स है. कितने वे से वो 5 लोगों को मैं 3 वैकेंट सीट्स पे अरेंज कर सकता हूँ. अरेंज का मतलब जहां पे ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर मैटर करता है. जहां पे ऑर्डर मैटर करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अरेंजमेंट. अरेंजमेंट मतलब परम्यूटेशन. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सीधा एक लाइन में हम लोग आंसर लिख देंगे एंड द आंसर इज 5p3. देख लो आंसर कितना आता है कैलकुलेशन के. आज का हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है पूरा आपका जो भी क्लास है वो है ई का नंबर 2. ई का नंबर 2 अगर समझ में आ जाता है तो बस सोचो परम्यूटेशन इज ओवर. आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है ई का नंबर 2. ध्यान से एक बार नोट करना. सो सी एवरीवन, you have this word Malenkov. I hope my voice audio is clear. Everyone, audio and video both is clear before starting. Yes. Okay. Now see. So you have this word Malenkov. इसका मीनिंग जानने का जरूरत नहीं है, बस मैंने एक ऐसा एग्जांपल ले लिया Malenkov. इसको लेकर के मैंने सारा क्वेश्चन स्प्लिट फॉर्म किया. ध्यान देना. Now पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, ध्यान से नोट करो. And I want, if you know the answer, it's very good, but I want everyone to pay attention and see how I'm doing. Okay? So तो एक बार ध्यान से नोट करो. Find the number of words. पहला क्वेश्चन है using all the letters of the word. मतलब पहला क्वेश्चन है कि मुझे सारे लेटर्स को, वर्ड Malenkov का सारे लेटर्स को यूज करना है. तो फिर मेरा क्वेश्चन है तुम लोग से कि NPR में, NPR जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं PN, R, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी. ये भी बहुत सारे तुम देखना, तुम लोग बुक्स में ऐसे भी पाएगा तुम लोग. एन ऐसे इधर लिखा जाता है, आर बाद में लिखा जाता है. यू कैन फॉलो एनी. नाउ वी नो दैट NPR में एन का मतलब होता है टोटल, आर का मतलब होता है एट अ टाइम जितने चीज को सेलेक्ट करके अरेंज करना है एन में से. तो पहला क्वेश्चन है वर्ड Malenkov में टोटल कितना लेटर्स है बताओ तो एक बार. यस, वर्ड Malenkov में टोटल कितना लेटर्स है, 8. मुझे कितने लेटर्स को चूज करके वर्ड फॉर्म करना है बताओ Malenkov वर्ड का. 8. एग्जैक्टली, वेरी गुड. पूरा मुझे 8 का 8 लेटर्स को चूज करके अरेंज करना है. तो इसका मतलब क्या होगा आंसर. मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ पहला वाला के लिए स्टेटमेंट लिख देता हूं. नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड equals to 8p8. And what is 8p8? It is equals to 8 factorial. This calculation part, as you all have, yes, and the calculation part you all have got the calculator. That I'm not going to tell कि 8 factorial का आंसर क्या होता है, क्योंकि यहां तक राइट है तो उसके बाद तो कैलकुलेटर रखिएगा. नेक्स्ट, नंबर 2. ना नंबर 2 में बोला जा रहा है यूजिंग 4 लेटर्स एट अ टाइम. मतलब मुझे वर्ड Malenkov को यूज करके मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 लेटर्ड वर्ड बनाना है. 4 लेटर्ड वर्ड बनाना है. तो बताओ क्या होगा इसका आंसर. Yes, it will be 8p4. Why? Because we have got total in front of us. हम लोग के पास टोटल कितने लोग हैं, कितने लेटर्स है, हमारे पास टोटल 8 लेटर्स हैं. और एट अ टाइम मुझे 8 लेटर्स में से 4 लेटर को ही चूज करना है, सेलेक्ट करना है और अरेंज करना है. चूज 4 करना है और फर्दर अरेंज करना है. 8p4 यूज कर सकते हैं. द आंसर इज 8 into 7 into 6 into 5. ओके, नेक्स्ट नंबर 3. नंबर 3 में बोला जा रहा है, अब मुझे बोला जा रहा है नंबर 3 में क्या ध्यान देना एक बार. नंबर 3 के बाद जितना भी क्वेश्चन है 3 ऑनवर्ड्स,
सारे क्वेश्चंस में पूरा वर्ड मैलेनकॉफ को एक्चुअली मैं लिखना मैं भूल गया हूँ पीडीएफ वाले क्वेश्चंस में कि इसके बाद 3 से लेके जितना भी क्वेश्चंस है सारा में पूरा लेटर्स को यूज किया जाएगा, मतलब पूरा वर्ड मैलेनकॉफ का वर्ड को के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें हमको क्या बोला जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द वर्ड मैलेनकॉफ व्हिच begins with n. Now listen here very carefully. Now ध्यान देना एक बार, पूरा 8 पोजीशंस पे 8 लेटर्स में begins with, तो बिगिनिंग मतलब इस पहला पोजीशन को फिल करने का हमारे पास कितने चॉइसेस है, which begins with n बोला है, one choice है, exactly one choice, ऐसे लिखोगे। and एग्जाम में ऐसे मत लिखना, अभी तुम लोग समझने के लिए ऐसे लिखना। and उसके बाद बाकी जो है हमारे सामने टोटल 7 पोजीशंस है। देखो पहला पोजीशन के बाद टोटल 7 पोजीशंस है। तो एक बात बताओ मुझे, पहला पोजीशन को मैंने फिक्स कर दिया n से, मतलब इस जगह को फिल करने का एक ही तरीका है, एंड बाकी 7 जगह को 7 प्लेसेस को 7 प्लेसेस को फिल करने का 7 लेटर से कितना वेज है बताओ तो। यस, दिस 7 पोजीशंस कैन बी फिल्ड विद 7 लेटर्स इन हाउ मेनी पॉसिबल वेज? इट इज not 7 ways. I repeat once again. We have got in this word Malenkov total 8 letters. Number of words formed from the word Malenkov which begins with n. n is fixed. पहला पोजीशन फिक्स है, पहला पोजीशन को फिल करने का एक ही तरीका है, एक ही वेज है, and that is n. इसके बाद अगर हम n को छोड़ दे तो हमारे पास टोटल 7 लेटर्स है और 7 पोजीशंस है। 7 प्लेसेस पे 7 लेटर्स को 77 वेज अरेंज कर सकते हैं, and the answer is how much? 7 factorial. 1 into 7 factorial is 7 factorial. Is this okay? Next, number 4 now. क्वेश्चन में ये बोला है, एक बात बताओ मुझे, अगर मान लो मैं ये बोलता हूं कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड ant which begins with a, इसका मतलब एक इस पोजीशन को, ये पोजीशन तो फिक्स है ना, पहला पोजीशन को a से मुझे फिल करना है, ये फिक्स हो गया, मतलब बाकी मुझे कितने पोजीशंस को इंटरचेंज करना है, कितने पोजीशंस पे लेटर्स को अरेंज करना है। तुम देखो अगर ध्यान से तो बाकी 2 पोजीशंस पे अरेंज करना, दैट इज NT TL, बाकी ये तुम्हारा पोजीशन तो फिक्स ही है। तो एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम द वर्ड मैलेनकॉफ सच दैट उसका पहला लेटर पे एक लेटर फिक्स है, एंड वो पहला पोजीशन पे एक लेटर फिक्स है, एंड व्हाट इज दैट लेटर? इट इज n. इस जगह पे n के अलावा और कुछ नहीं है। इस जगह को फिल करने का हमारे पास कितना वेज है, कितना ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है ना, एंड दैट इज n, एक ही ऑप्शन है। एंड बाकी 7 पोजीशंस को फिल करने का हमारे पास कितना वेज है, तो हमारे पास कितना लेटर्स बचा है? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स बचा है। 7 लेटर्स को 7 लोग हैं और 7 सीट्स है, ऐसे सोचो, 7 सीट्स है और 7 लोग हैं, 7 लोगों को 7 सीट पे मैं कितने में से बिठा सकता हूं? 77 में। दिस इज दैट। ओके, इज दिस क्लियर? सो वी आर फाइंडिंग दैट पहला पोजीशन तो फिक्स है, हमको अरेंज उसको नहीं करना है, बाकी प्लेसेस को अरेंज करना है, वो तो फिक्स है। तो इसको अरेंज कर दो तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू योर टोटल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स which begins with n. Next, question number 4 is which begins with m and ends with k. ध्यान देना एक बार, begins, ends, and in between you have got total 6 positions. समझ में आया? तो एक पोजीशन, 6 पोजीशन, 7 हो गए, एक मिला के 8 हो गए। पूरा वर्ड मैलेनकॉफ में कितना लेटर्स है? 8 लेटर्स है। 8 लेटर से मैंने ये पोजीशन बना दी, इसके बीच में यहाँ पे 6 पोजीशंस है, ठीक है। अब बताओ मुझे एक बार, which begins with n, इस जगह को फिल करने का हमारे पास कितने चॉइसेस है बताओ तो एक बार। इस जगह को begins मतलब एक तरीका, इस जगह यस एंड करने का हमारे पास कितने चॉइस है? 1। नाउ इस 6 जगह को फिल करने का हमारे पास लेटर्स कितने बचे हुए? 6 जगह को फिल करने के लिए लेटर्स कितने बचे? 6 लेटर्स। तो 6 जगह पे 6 लेटर्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 6 मत बोलना, सोच के बोलना। यस, 6 फैक्टोरियल, 6 पे 6 एंड दैट इज 6 फैक्टोरियल।
I hope it is clear. This is the way. If you copy, then it will help you in understanding. Okay, make sure that the way I have shown here, if you copy this way, बस ऐसे लिख देना नंबर ऑफ वेज, बस जो लिखा है ना वैसे बस लिख देना नंबर ऑफ वर्ड्स विच बिगिंस विद एम एंड एंड्स विद के, बस हो गया, उतना ही काफी है। और उसमें कुछ स्टेटमेंट नहीं चाहिए, इसीलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। हाँ हाँ डायरेक्ट, हाँ ये तो फॉर्मूला से ही तो कर रहे हैं हम लोग डायरेक्ट। वी आर डूइंग द फॉर्मूला ओनली, मतलब हम समझे नहीं, पर फिर से एक बार तुम रिपीट कर तुम्हारा क्वेश्चन, ये फॉर्मूला से डायरेक्ट क्या चीज। एक सेकंड वो, हाँ हम लोग ऐसे करेंगे ना, इस तरह से हम लोग यहाँ पे परम्यूटेशन भी अप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन रूल भी अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे ही करना पड़ेगा हम लोग बस। अच्छा एक और चीज बता रहे हैं ना, ये चीज हम ना भी दिखाए तो चलेगा, लेकिन हम ये चीज दिखा रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। चल क्या रहा है कि पहला पोजीशन को फिल करने का हमारे पास एक वेज है, इसको फिल करने का एक वेज है। वैसे अगर देखो तो पहला वाला पोजीशन और लास्ट वाला पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा है ना, वो पोजीशन तो फिक्स्ड है, क्योंकि वो फिक्स है तो वो अरेंज नहीं हो रहा है, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी 6 प्लेसेस पे 6 चीजों को कितने में से अरेंज करेंगे, 6 पे 6 ways, but I have shown this just to explain you all and nothing else. You can directly write down 6 पे 6, this is not required, okay, just तुम्हारे explanation के मतलब तुमको समझाने के लिए मैंने ऐसे करके दिखाया। Is this clear? But I'll ask you all to do this way only, this is better। हमेशा तुमको खुद को देखो, सबसे पहले क्या होता है मैथ्स में खुद को समझाना, खुद को समझा रहे हो तो क्या हो रहा है कि तुमको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। So I want everyone to copy down till number 4, okay, and then I'll move ahead. Copy करो यहाँ तक, और मैं पूरा ये excuse me पूरा क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा ये वाला 15 questions। Now next, shall I move ahead? You will have copy, I will see, ये बेटर है कि ये जो मैं लिखा रहा हूँ जैसे लिखा रहा हूँ कॉपी करो प्लीज, स्क्रीनशॉट मत लेना। Now क्वेश्चन नंबर 5, मैं सब पहले मैं हर एक क्वेश्चन में, अब मैं पहले थोड़ा देर रुकूंगा, कोई बीच में मत बोलना, ओके, जितना सेकंड में बोलूंगा तुम लोग खुद सबको ट्राई करना, और फिर मैं बताऊंगा, फिर तुम लोग मैच करना। अगर तुम्हारा जो थिंकिंग है वो मैच ना करे मैं जो कर रहा हूँ, तो तुम एक बार क्वेश्चन पूछना, नहीं समझ में आया तो, ओके, बट पहले सोचना। आई विल गिव यू टाइम फॉर एवरी क्वेश्चन, लिसन हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, देखना एक बार, नंबर ऑफ वर्ड्स व्हिच बिगिंस विद अ वावल। तो बिगिन, एक बात बताओ, शुरुआत तो एक ही जगह से हो सकता है ना, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, इस जगह को मैं सिर्फ और सिर्फ एक मतलब पोजीशन 1 से मैं मार्क कर रहा हूं। बिगिंस विद अ वावल, इसके बाद बचा क्या, 7 पोजीशन बचा, 7 जगह। तो कोई बता, पहले सब कुछ सोचो इसमें क्या करना चाहिए। क्वेश्चन में बोला है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम द वर्ड मैलेनकॉफ, उस वर्ड का मुझे सिर्फ वो वर्ड्स बताओ, उतना वेज बताओ जिसमें मैलेनकॉफ में स्टार्टिंग पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ वावल्स आएंगे। तो एक बार सब कुछ सोचो पहले दिमाग लगा के, फिर मुझे आंसर बताना, पहले मत बताओ। यस, आई एम गिविंग यू 30 seconds टू थिंक, एवरीवन think and then tell me. Number of words I asked you, number of ways, all possible ways. Is this only 3? बताओ एक बार, तुम खुद सोचो एक बार, पहले सब सोचो सब कोई। वेरी गुड, नहीं नहीं एक सेकेंड, मैं यस 3 into 8 पे 7 is same as तुम्हारा आवाज हमेशा पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, बट आई कैन हियर दैट यू आर सेइंग 3 into 7 p 7, 3 into 7 factorial you said, and is the correct answer. See everyone listening, एक बात बताओ, हमारे सामने टोटल वावल्स कितने सारे हैं बताओ तो, 3 वावल्स है। तुम एक बार दिमाग लगाओ,
एक बार ये चीज का थोड़ा दिमाग लगाओ तुम लोग कि बिगिंस विद अ वावल, जगह एक है, ऐसे सोचो तुम लोग, सीट एक है और लोग तीन है, तीन लोग हैं और एक सीट है, तीन लोगों को एक सीट पे 3p1 में हम बिठा सकते हैं. नाउ यू नो दैट 3p1 इज सेम एज 3. सो जिसने बोला, जिसने भी सोचा है 3 into, you are absolutely correct because 3p1 is same as 3. So I am explaining you both the ways. Like जो तुम सोच रहे हैं, it's multi, तुम सिर्फ सीधा सोच रहे 3, that is same as 3p1 because तीन चीजें हमारे सामने, तीन लोग खड़े और जगह एक है, तीन लोगों को एक जगह पे कितने में से हम बैठा सकते हैं? 3p1 ways, that is 3. समझ में ना? तीन लोगों में से एक को हम चूज करेंगे और अरेंज करेंगे उस जगह पर. 3p1. नेक्स्ट, एक बात बताओ, थोड़ा बहुत लोग बोल रहे हैं 5p5 8p7, तुम लोग एक बात बताओ, यहाँ पे जगह सिर्फ 7 है, इसके बाद एक के बाद वर्ड मैलेनकॉम में टोटल लेटर्स ही 8 है, तो एक जगह को तो फिल कर दिया, अब 8 क्यों आएगा बताओ एक बार? अब वापस 8 क्यों आएगा? मेरा क्वेश्चन तुम लोग से ये है, जिसने 8p7 बोला उसका ये मेरा आंसर है, why it will be 8p7. माय क्वेश्चन टू माय ये मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं कि टोटल लेटर्स है 8, पहला जगह तो फिल हो चुके हैं, तो लेटर्स तो अब जगह कितना बचा? 7 ही जगह ना बचा, 8 का तो कोई सवाल ही नहीं है. दूसरा 5p5, that is I don't think it makes any sense because the correct thing is what, 7 जगह है और इसमें से कोई एक ही तो यूज हुआ है ना, तो यहाँ पे दो बचा है, यहाँ का दो और रिमेनिंग कॉन्सोनेंट्स, 5 कॉन्सोनेंट्स है यहाँ पे. देखो एक बार, 5 और 2 मिला के कितना हो गया? 7. 7 लेटर्स को रिमेनिंग 7 प्लेसेस पे 7p7 वेज अरेंज करेंगे, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज 3 into 7 factorial. This is the answer. I repeat once again. You just think this way, that the first position will be filled with how many ways? We have got how many ways to fill the first place? As it cannot begin with any other letters other than vowel, so we have got 3 vowels in this word Malenkov, that is A, E, O. तो तीन चीजों को हम एक जगह पे कितने वे से फिल कर सकते हैं? 3p1 बोलो या सिंपली 3 बोलो, बात बराबर है. एंड बाकी मुझे 7 को भी तो फिल करना है, तो 7 प्लेसेस पे कितने लेटर्स बचे? पहला जगह पे तो एक ही लेटर फिल हुआ ना, तो अगर तुम देखो तो एक अगर फिल हुआ तो बाकी कितने लेटर्स बचे? 7. और सीट्स कितने हैं? जगह कितना है? 7. 7 जगह पे 7 लेटर्स को 7p7 वेज अरेंज कर सकते हैं, एंड द आंसर इज 3 into 7p7, that is 7 factorial. Is this clear? Is this clear? Like जिसका डाउट था, मतलब कुछ भी नहीं, you all have tried and that's always good. I always appreciate that you have tried, but also think that तुमने जो ट्राई किया वो गलत था. कैसे? मैंने समझाया, और मैंने जो समझाया उसको समझो पहले. Yes. I'm moving ahead now. Next. Question number 6 now. Which begins with a vowel and ends with a consonant. तो begins with a vowel, एक जगह यहाँ पे इस जगह को फिल करने का एक्सेप्शनल केस है, उस चीज को फॉलो करना ही पड़ेगा. क्या? इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ वॉवेल्स आएगा, इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट्स आएगा, ये लास्ट, और बीच में क्या है? 6 जगह है ना. मुझे बताओ, तुम लोग पहले सोचो, पहले आंसर मत बोलो प्लीज, पहले सोचो, तुम लोग दिमाग लगाओ, करना क्या है पहले सोचो. वॉवेल्स कितना है, कॉन्सोनेंट्स कितना है? तो पहला के लिए कितना ऑप्शन है, लास्ट के लिए कितना ऑप्शन है, बीच के लिए कितना ऑप्शन है, सीट्स कितना है, सब कुछ सोचो. यस, आई एम गिविंग यू टाइम, 10 seconds. Now I think this time everyone is correct, I think, okay, because सबको एक आंसर दे पा रहा है, बहुत तो 15 बोल रहे हैं, that is same thing. पहला जगह को फिल करने का हमारे पास क्योंकि 3 वावल्स है, तो 3p1 वेज, that is equal to 3. लास्ट पोजीशन को फिल करने का हमारे पास कॉन्सोनेंट्स कितने सारे हैं? M, L, N, K, V, इतने सारे कॉन्सोनेंट्स हैं यहाँ पे. तो इस जगह को फिल करने का हमारे पास 3p1 वेज है, इस जगह को फिल करने का हमारे पास 5p1 वेज है. तो किसी ने शायद अभी बोला मुझे 3 5 15, एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. उसके बाद बीच में 6 सीट्स है, 6 सीट्स है, तो यहाँ का एक यूज हो गया, तो 2 और 4 मिला के कितना हो गया? 6. 6 चीज, कोई भी 6 चीज बचे, तो 6 प्लेसेस पे 6 चीजों को 6p6 में अरेंज कर सकते हैं. एंड यू ऑलवेज राइट दिस वे फर्स्ट. आंसर डायरेक्ट मत बोलो, मुझे बस इतना बता दोगे तो बस हो गया, उसके बाद तो कैलकुलेशन है. तो आंसर इज 3 into 6 factorial into 5. Yes, okay, बोलो.
देखो एक्चुअली मैं अगर मेरे पॉइंट से अगर देखो, पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि ये सिलेबस तो बोर्ड में नहीं है, लेकिन अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो हमारा हम लोग का मतलब जो हम लोग को पता है, तो यहाँ तक छोड़ोगे तो 100% राइट है। तुमको आगे कोई फर्दर नहीं चेक करेगा कि तुम्हारा आगे तुम क्या चेक दे रहे आंसर, बिकॉज मेन चीज तो यहाँ लॉजिक है ना, तुम्हारा लॉजिक तो 100% करेक्ट है। तुम इसके आगे 3 5 जब 15 इंटू मल्टीप्लाई करके लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, दैट्स irrelevant, बिकॉज our main objective here is to test whether you have understood the concept of permutations or not. So that is more than enough. But as you all have got calculator, your teacher will 100% expect that what is the answer you are giving, final answer. But if अगर calculator तुम्हारा use नहीं हुआ रहता, then fine, यहाँ तक कोई problem नहीं है. But as you all have got calculator with you, you all have can use calculator. You have to write answer. I will say suggest you all to write out the answer. Okay, पूरा calculation. Next number 7. नंबर 7 देखना एक बार क्या लिखा हुआ है। इन विच नंबर ऑफ वर्ड्स, मैलेनकॉफ का वो सारा वर्ड्स, मैलेनकॉफ से तो बहुत सारा वर्ड्स बन सकता है। कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं? 8 फैक्टोरियल वर्ड्स। हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो उसके अंदर ही आ रहा है, मतलब जितने सारे वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं वर्ड मैलेनकॉफ से, वो 8 फैक्टोरियल है। उसके अंदर जितने भी मैंने लिखा है ना, सिर्फ नंबर 2 को छोड़ के बाकी सारा चीज उसके अंदर ही आएगा। समझ में आया तो बात? अब देखो एक बार ध्यान से, इन विच वॉवल्स ऑक्यूपाई, मैलेनकॉफ का वो सारा वर्ड्स का मैं बात करना पूछ रहा हूं तुम लोग से जिसमें वॉवल्स ऑड प्लेसेस पे ही आएंगे। अब ध्यान देने का, तो वॉवल्स पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8। नाउ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पे हम लोग को कंपल्सन, जो यहाँ पे हम लोग को कुछ डायरेक्शन दे दिया है, वो डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ये है कि ऑड प्लेसेस पे वॉवल्स को ही रखना है। ओके, इन विच वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेस, मतलब सॉरी मैं गलत बोला, वॉवल्स सिर्फ और सिर्फ ऑड प्लेस पे जाएंगे, ऑड प्लेसेस पे सिर्फ वॉवल्स नहीं, मैंने गलत बोला ये चीज। समझ में तो बात? मतलब वॉवल्स कहां पे हमको रखना है? उनको ऑड प्लेसेस पे रखना है, ठीक है ना? ऑड प्लेसेस के अलावा वॉवल्स और कहीं नहीं रह सकते। नाउ सी, तो यहाँ पे ऑड प्लेसेस कितना दिख रहा है? यहाँ पे 1 2 3 4। अब मैं एक बात पहले, इससे पहले एक चीज मैं तुम लोग से पूछूं, मेरा बात ध्यान से सुनना। 5 लोग हैं, देयर आर 5 persons and 3 seats. 5 persons, 3 seats. In how many ways 5 persons be seated in 3 vacant seats? Yes, tell me the answer. Yes, 5 be 3 ways. Now tell me, there are 3 persons and 5 seats. In how many ways 3 persons be seated in 5 seats? Yes, tell me now. It is also 5p3. So इस चीज को समझना तुम लोग, क्या हो क्या रहा है देखना एक बार। इसमें क्या हो रहा है? इसमें सीट्स कम है, सुनना एक बार ध्यान से, तुम दिमाग लगाओ एक बार, ऐसे सोचो। एक दिन तुम स्कूल गया, तुम्हारे स्कूल का, सपोज किसी भी स्कूल का एक, मान लेते टोटल एक स्कूल का अटेंडेंस है 20, टोटल स्ट्रेंथ है 20 स्टूडेंट्स, ऐसे सोचते हैं, और इसमें क्लास में अरेंज है सिर्फ और सिर्फ 15 सीट्स, क्योंकि माना जा रहा है कि स्कूल का रेपुटेशन बहुत खराब है अटेंडेंस के मामले। तो अगर मान लो डेली पूरा स्टूडेंट नहीं आ रहा है तो क्या होगा? तो उस 15 सीट्स के लिए कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि 15 सीट है और 20 स्टूडेंट्स है, मान लो किसी दिन 20 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो फिर क्लास में कितने लोग सिर्फ बैठेंगे? 15 लोग। तो 15 में चूजिंग होगा, क्या होगा चूजिंग? कि 20 में से कौन आएगा अंदर और उस 15 सीट को ऑक्यूपाई करेगा। समझ में आया बात? तो क्या हो जाएगा? 20 स्टूडेंट्स में से चूज होगा, 20 स्टूडेंट्स में से सिलेक्शन होगा 15 स्टूडेंट का टू ऑक्यूपाई those 15 seats. Are you understanding my point? पर 20 स्टूडेंट्स में से 15 स्टूडेंट को ही मैं सेलेक्ट करूंगा, और जब वो लोगों को सेलेक्ट करके अंदर रूम के अंदर बुलाऊंगा तो लोग कैसे भी बैठ सकते हैं 15, मतलब 15 सीट्स को कैसे भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। कितने वेज ऑक्यूपाई कर सकते हैं? 20p 15 वेज। समझ में आया? तो मैंने मान लो 20 स्टूडेंट बाहर करे और 15 सीट है, तो मैं सोचो 20 स्टूडेंट बाहर करे और 15 सीट है, तो 20 में से मैं 15 को सेलेक्ट करूंगा, बोलूंगा 15 आ जाओ, तो 15 आया, 15 बहुत तरीके से बैठ सकते हैं। फिर वो 20, फिर मैंने बोला सबको बाहर जाए, फिर मैंने किसी और 15 को बुलाया, समझ में ना? उसी में से कोई और 15 को, किसी एक को हटाया, किसी एक को रख दिया, वापस 15 को बुलाया, उस वापस ये 15 सीट्स को बहुत तरीके से ऑक्यूपाई कर सकते हैं, 20p 15 वेज ऑक्यूपाई कर सकते हैं टोटल ऑल टुगेदर। लेकिन अगर मान लो ऐसा सिचुएशन है कि देयर आर टोटल 10 स्टूडेंट्स एंड 15 सीट्स, तो क्या होगा? तब मैं क्या करूंगा? तब 10 स्टूडेंट्स है और 15 सीट्स है,
तो मैं 10 से 10 को बुला लूंगा अंदर और बोलूंगा कि ये 15 में से कोई भी सीट पे बैठ जाए। तो वो क्या करेगा? 15 में से किसी सीट पे बैठ जाए मतलब क्या करेगा? पहला स्टूडेंट के पास बेस कितना होगा? 15 बेस होगा। तुम ध्यान से नोट करो। तो पहला स्टूडेंट के पास बेस कितना होगा? 15। दूसरा स्टूडेंट के पास कितना बेस होगा बैठने? ऑप्शंस कितना होगा? 14। तीसरा स्टूडेंट के लिए 13। फोर्थ स्टूडेंट के लिए ऐसे करके बहुत सारा बेस, मतलब कितना बेस हो जाएगा? 15p 10 बेस हो जाएगा। So that's why make sure that if there are 5 persons and 3 seats, 5 persons can occupy 3 seats. In this way, persons में से मैं 3 persons को select करके 3 seats पे मैं बैठा रहा हूँ। और इस केस में क्या हो रहा है कि मैं 3 persons को बुला ले रहा हूँ, सब कोई आ जाओ अंदर, सब कोई को बुला रहा हूँ अंदर और बोल रहा हूँ कि 5 सीट पे बैठ जाओ। तो क्या करेगा? पहला स्टूडेंट के लिए कितना वेज होगा? 5। दूसरा स्टूडेंट के लिए कितना ऑप्शन होगा? 4। तीसरा स्टूडेंट के लिए कितना ऑप्शन होगा? 3। तो देखो दोनों में आंसर, दोनों का नंबर ऑफ वेज उतना ही है, ठीक है ना? बट इसको लॉजिक को समझना है कि वो क्या है। इसमें 5 पर्सन में से 3 पर्सन सेलेक्ट करके अरेंज कर रहे हैं हम लोग, समझना है? इसमें 3 पर्सन को नहीं सेलेक्ट कर रहे, पर्सन सारा आ गया, सीट्स को बोल रहे हैं सीट्स पे बैठ जाओ। तो सीट्स पे बैठने के समय क्या है? सीट्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। पहला वाला स्टूडेंट के पास 5 ऑप्शन से किसी एक सीट पे बैठ जाएगा, दूसरा वाले के लिए 4, तीसरा वाले के लिए 3। तो ये चीज को समझना तुम लोग। तो एग्जैक्टली सेम वे। अब ध्यान देना यहाँ पे टोटल वावल से 4 वावल से, और सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ पे 4 ऑड प्लेसेस है और 3 वावल्स है। एक बात बताओ, 4 ऑड प्लेसेस पे 3 वावल्स को कितने वे से बता सकते हो? बताओ। सॉरी रॉन्ग है। यस, जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन यू ऑल, इट इज 4p3 बिकॉज वो क्या है, सीट 4 है। आंसर सेम होने से मतलब नहीं है, लॉजिक तुम्हारा गलत है। बिकॉज 4p3 is same as 4p4, that is fine. I know that 4p3 is same as 4p4, but logically you are incorrect. Because 3 into 2, 2 into 3, both is equal to 6. But what is the meaning of 3 into 2? 3 into 2 और 2 into 3 में फर्क होता है। एक का मतलब क्या हुआ कि 2 3 बार अपीयर कर रहे हैं, और एक का मतलब क्या हुआ 3 2 बार अपीयर कर रहे हैं। तो बात को ध्यान से समझना, इस आंसर से मत देखो। तुमसे अगर पूछेंगे कि 4p3 का आंसर क्या है, और क्या 4p3 का आंसर और 4p4 का आंसर अलग अलग है, आंसर 100% यू आर करेक्ट। बट if I logically if I ask you, obviously both differs in logic. Are you understanding my point or not? So that's why you must not say 4p4 right now. And if you say 4p4, please explain me. There is, and you must give explanation, because देखो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है तुम लोग को प्रॉपर चीज को समझाना। मैं 4p4 को भी तुम अगर बोलोगे करेक्ट है, I will come to that part later on. I'll come to that part later on, but right now you just cross it out from your mind कि right है, नहीं right है। Logically you are incorrect. बात को समझो। 3 into 2 is 6, 2 into 3 is 6. दोनों का आंसर 6 है, लेकिन एक का मतलब क्या है कि 3 2 बार अपीयर किए, और एक का मतलब है 2 3 बार अपीयर किए। बात को समझो। 2 plus 2 plus 2 is 6, 3 plus 3 is also 6. तो वैसे करके, तो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे 4 सीट्स है और 3 वावल्स है। समझ में आया बात? 4 सीट्स पे मैं 3 वावल्स को कितने वे से मैं बैठा सकता हूँ? 4p3 वे। इस तरह से लॉजिक को प्रेजेंट करो, जो तुम सोच रहे हैं उस लॉजिक को फैक्टोरियल फॉर्म में से प्रेजेंट करो, परम्यूटेशन के फॉर्म में। एंड आगे बताओ तुम लोग क्या करना चाहिए। करेक्ट। नाउ व्हाई 5p5? लिसन हियर, बिकॉज़ देखो ध्यान से सुनना। 5, देखो बहुत लोगों के दिमाग में लग रहा होगा 4 ही तो बचा है। नहीं, 4 नहीं बचा है। ये देखो 4, देखो 1 2 3 4 में से कोई 3 प्लेस फिल हुए, कोई 3 प्लेस फिल हुए, याद रखना। 1 2 3 4 ऑलरेडी इवन बचा हुआ है और एक ऑड बच गया है। तो 4 इवन और एक ऑड मिला के कितना हो गया? 5 हो गया। कितने लोग अभी भी बचे हैं बैठने वाले? 5 कॉन्सोनेंट्स अभी बचे हैं बैठने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? 5p5। इसीलिए मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, वावल्स occupy odd places and odd places will be only filled with vowels। में बहुत फर्क है। देखो बहुत फर्क क्या है कि odd places पे अगर मैं बोलता हूं कि odd places will be filled with only vowels, का मतलब हुआ कि odd places पे vowels के अलावा कुछ और नहीं आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं बोला है, इसमें परम्यूटेशंस में एक लाइन में चेंज हो जाता है क्वेश्चन का मतलब। इसीलिए इस चीज को बारीकी से समझना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है vowels occupy odd place, मतलब odd place पे vowels को रख दो। तो क्या मैं ऑड प्लेस में बाकी को नहीं रख सकता हूँ? ऑब्वियसली रख सकता हूँ, लेकिन वॉवेल्स ऑड के अलावा नहीं आएंगे कहीं और। तो इसीलिए यहाँ पे 4 प्लेस है, 4 ऑड प्लेस है
और 3 वावल्स है, तो 4 ऑड प्लेस पे 3 वावल्स को 4p3 वेज रख रहे हैं हम लोग, लेकिन एक कोई ना कोई एक तो जगह बच जाएगा ना। इस पे अगर मैं ए को रखूं तो ये बच जाएगा, ए को रखूं तो ये बच जाएगा, कोई ना कोई एक ऑड प्लेस बच जाएगा। और 4 भी इवन है, तो 4 और 1 मिला के 5 हो गए, 5 चीज है। दिस इज द आंसर। 7 नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑल वावल्स आर टुगेदर। नाउ ये वाला जो टाइप है एकदम अलग टाइप है, इसको मैं एक बार समझाता हूँ। पहले कॉपी कर लो, तो 3 चीज कॉपी करो। बोलो बोलो। 7 में ऐसा है कि यहाँ पे तो टोटल तुम्हारे पास ये बोला है कि ऑड जो वावल्स है उसको ऑड प्लेसेस पे रखना है, मतलब वावल्स कैन नॉट गो एनी अदर इन एनी अदर प्लेस, इट हैज टू कम एट ऑड प्लेस ओनली। तो हमारे पास सामने ऑड प्लेसेस कितने हैं, प्लेस 1 2 3 4, 4 ऑड प्लेस पे लोग कितने बैठेंगे, 3 लोग बैठेंगे, तो 4p3 वेज बैठेंगे। ऐसा करने के बाद कोई भी 3 प्लेस तो फिल हुआ ना, अगर ऑड के बारे में बात करें तो कोई 3 प्लेस फिल हुआ, 3 ही लोग तो है ना, एक बचा, 4 इवन है ऑलरेडी अभी बचा हुआ, और एक ऑड प्लेस, कोई भी एक ऑड प्लेस मिला के 5 प्लेस हो गए, 5 प्लेस और 5 कॉन्सोनेंट्स, 5 जगह पे रिमेनिंग 5 चीजों को 5p5 इज अरेंज करेंगे। And this is your answer. I'm just taking a break of a minute, everyone. फटाफट एक कॉपी करो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नंबर 8, and 8 is one of the most important question. फटाफट करो कॉपी, I'm just copying. So everyone, let's start now. Question number 8. ध्यान देना एक बार। ना मैं जो बोल रहा हूं एक बार उस चीज को समझो पहले, क्या है लिसनिंग। सपोज इफ आई से यू हैव अ बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या है मैं बोल रहा हूं, छोड़ दो मैं, एक बॉक्स मैंने तुमको दिया और मैंने तुम लोग को सी और डी 2 लेटर्स दिए, मतलब मान लो तुमको मैंने दे दिया तुम्हारे सामने एक बॉक्स, ठीक है, क्यूबिक रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक लेटर दे दिया, ठीक है, वैक्स का लेटर एक दे दिया सी,
और तीसरा डी, एक मतलब प्लास्टिक का टॉय वाला लेटर, सी दे दिया और तीसरा डी दे दिया, बोला मैंने इसको अरेंज करो, तो तुम क्या करेंगे? तुम पहले, सबसे पहले तुम अगर देखो तो तुमको इतना भी तुम क्लियर हो गया तुम्हारा कंसेप्ट कि तुम एक लाइन में मुझे आंसर देके बता पाएगा। क्या आंसर देगा तुम? यस एनीवन? तीन लेटर्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? एक, दो, तीन, तीन चीज को, तीन सिंबल्स को। यस प्लीज हरी अप। तीन लेटर्स को, प्लास्टिक टॉयज को। इज माय वॉइस ऑडिबल टू यू? हाँ, 3 फैक्टोरियल वेज, वेरी सिंपल वेज, 3 फैक्टोरियल। व्हाई? बिकॉज तीन चीज को मैं तीन जगह पे 3p3 वेज अरेंज कर सकता हूं, दैट इज 3 फैक्टोरियल। व्हाट इज दैट? लिसन, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो जो तुमने सोचा मैंने पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर दिया, और तुम्हारा लॉजिक पिक्टोरियल, ये हो गया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर लॉजिक, एंड ये हो गया परम्यूटेशन फॉर्म में, मतलब 3p3 एक लाइन में परम्यूटेशन फॉर्म में। क्लियर? एंड यू नो परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट, सो हियर ऑर्डर मैटर्स। इस ऑर्डर में हम कर रहे हैं, मैटर कर रहे हैं। ये हो गया इतना चीज। अब मैं बोल रहा हूं, अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये बॉक्स के अंदर था ए और बी, उसको खोलो बॉक्स को। बॉक्स को तुमने खोला, बॉक्स को खोला, हर जगह तुमने बॉक्स को खोला तो तुमने क्या पाया उसके अंदर? दो लेटर्स। एवरीवेयर यू फाउंड टू लेटर्स, ए एंड बी। प्लीज थिंक द वे आई एम थिंकिंग, जस्ट गो सीक्वेंस, सिस्टमैटिक वे। एक बात बताओ, डू यू फाइंड दैट इन एवरी अरेंजमेंट, A and B are always together? Yes or no? Tell me. सारे जगह पे देखो, A and B are kept together. A and B are never separated. A and B are kept together. Now, my question is, find the number of words in which, arrangement of the word A, B, C, D. You have the word A, B, C, D. Find the number of arrangement of the word A, B, C, D such that A and B are always kept together. So A and B are always kept together. तो मैंने क्या किया? पूरा ए और बी को एक पूरा बॉक्स के अंदर मैंने टाई कर दिया, मैंने एक बॉक्स के अंदर रख दिया दोनों ए और बी को। ठीक है, टाई कर दिया, हर जगह ए और बी आर टुगेदर। बट मैंने ये तो तुमको नहीं बोला ना, ए एंड बी आर ऑलवेज टुगेदर इन द ऑर्डर। लिसन हियर, इन द ऑर्डर ए एंड बी, ऐसा तो मैंने नहीं बोला ना। तो फिर इससे हम फर्दर कितने वर्ड्स बना सकते हैं? इससे हम लोग वापस से दो वर्ड्स बना सकते हैं। व्हाट इज दैट? ए बी सी डी, बी ए सी डी, ABDC, BADC, CABD, CBAD. Are you understanding what I want to explain you all? See, हम देख रहे हैं कि पूरा A और B को एक पैकेट, एक बॉक्स के अंदर हम इसको बांध दे, टाई कर दे, considering A and B as a single entity. Why I am using this word entity, single entity? Because A and B are always kept together. A and B are always together. So मैंने A और B को together करके इसको एक entity मान के एक, दो, तीन चीज को मैंने इतने वे से अरेंज कर दिया। And इसका मतलब है 6। देखो 6, 1 2 3 4 5 6। इसका हर एक को अगर हम फर्दर देखें तो कितने सारे ब्रांचेस आ रहे हैं इसके आगे? दो ब्रांच, एक से दो ब्रांच आ गए, फिर दूसरा से भी वापस दो ब्रांच, इससे भी वापस दो ब्रांच, इससे भी वापस दो ब्रांच आएगा। तो अगर मैं एक को वापस से दो वे से अरेंज कर सकता हूं तो टोटल इस 6 को कितने वे से अरेंज करके वर्ड्स बन सकता है? बताओ, टोटल कितना वर्ड्स फॉर्म होगा? बताओ। 12। तो मतलब क्या हो रहा है? दिस and why and? Because keeping A and B as a single entity, you are forming total 3p3 words, and again A and B are kept together, fine, no problem. But A and B itself at that same position can be further arranged in how many ways? Further arranged in 2p2 ways. Can I say 2p2 ways? Because 2p2 means 2. Just see. इसको दो तरीके से, इसको दो तरीके से, इसको वापस दो तरीके से. So it is 6 into 2. That is what? 12 ways, 12 words. So I repeat one. So exactly same, and I would repeat with this example, but I will use one more example. Just note down. How many words can be formed from the word A, B, C, D, E such that A, B, E are always together?
A, B are always together. Yes. So can you just answer? क्या होगा? Now why 4 factorial? सबसे पहले why 4 factorial? No, no, you're correct. You're correct. But I'm just saying that. Sorry, it's 3 factorial, no? Into 3 factorial, not 4 factorial. Huh, yes. Now, my question is why first 3 factorial for? First 3 factorial is for you are considering A, B, E as a single entity. पूरा को मैं एक चीज में टाई कर दिया, इसको सेपरेट करेंगे ही नहीं हम, पूरा एक चीज है. बचा हमारे पास बी और सी. हमारे पास कितने एंटिटीज दिख रहे हैं यहाँ पे? एक सिंगल एंटिटी, एक दो तीन, ये तीन चीज को 3 वेज अरेंज कर देंगे. एंड जहां भी ए बी ई आएगा वो एक साथ ही रहेगा, दैट इज ऑल ओके. बट ए बी ई खुद में कितने वेज अरेंज होंगे? इनटू फर्दर 3p3 वेज. देखो यहाँ पे 1 2 3 3 फैक्टोरियल, ए बी को 2p2 वेज. आई होप नाउ इट इज क्लियर. Shall I erase? I think it is clear. Do you have any doubt here? If you have doubt here, then you will have doubt further else. If this part is clear, I am 100% sure that you will not face any problem in number 8. Please, anyone who wants to ask? So I am erasing now. Erase करने के बाद मत पूछना. Okay? No, okay, I am asking, erasing now. Now क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन देखना एक बार. लिखा हुआ है number of words in which all vowels are together. मतलब vowels are always kept together. मतलब एक भी vowel separate नहीं होगा. तो एक बात बताओ, तुम लोग आंसर बोलो, तुम्हें क्या होगा आंसर? यस बोलो. Very good, absolutely correct. So I hope everyone has understood this. So in this, what we are doing, I'm showing the diagram also. AEO is considered as a single entity. AEO is considered as a single entity. So we have got how many different things here? We have got total 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is 6p6. And further, these three things can be arranged in how many ways? 3p3 ways. This is clear. So this is the total number of words formed in which all vowels are kept together. Okay? Yes? Next. Question number 9 now. Now, question number 9 is what? Just wrote down. In which all vowels, सारा vowels एक साथ ही हो. मतलब एक भी अलग कर दिया तो हो गया. मतलब question satisfy कर. एक ए भी अलग है, all vowels are. मतलब कोई भी एक अलग हो गया तो never together. मतलब एक हो गया always together, ये हो गया आंसर. Now, who can tell me are never together का आंसर क्या होगा? Very good. Very good. Absolutely correct. You have understood this because I am always repeating this, that this number 1 is all possible ways of arrangement of what Malinkoff. Whatever we are discussing from number 3, not number 2, is all under number 1 only. Number 1 हो गया यूनिवर्सल, इसके अंदर ये सब कुछ आ रहा है. तो एक बात बताओ, पूरा हम लोग टोटल वर्ड्स मैलिनकॉफ से टोटल वर्ड्स कितना फॉर्म कर सकते हैं? देखो नंबर 1 इट इज 8 फैक्टोरियल. इसमें से कितने सारे वर्ड्स है जिसमें सारे वावल्स एक साथ होंगे? इट इज 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. तो अगर मैं टोटल में से इतना हटा दूं तो जो बाकी वर्ड्स बचेंगे वो कैसे वर्ड्स होगा? वो सारा वर्ड्स होगा जिसमें वावल्स आर नेवर टुगेदर. All vowels are never together again. Clear everyone? So I repeat once again. The total number of ways of arrangement of what Malinkoff is 8 factorial. Out of this 8 factorial ways, what is the number of ways in which vowels are always together? So what is the number of words in which vowels are never together? Total minus this. Total minus always together. The result is never together. Very simple. Now question number 10 is which this question which you all have to do, number 11, 10, 11 and 12. Everyone 10, 11 and 12 ये तीन सम कर दो. तीन सम खुद अभी करो सब कोई. 10, 11 and 12. हरी.
So have you done number 10, everyone? फोर पी फोर इंटू, सबसे पहले 10 नंबर में बोला है कॉन्सोनेंट्स आर ऑलवेज टुगेदर. 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इज द करेक्ट आंसर. व्हाई? बिकॉज तुमको बोला जा रहा है कि ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, मतलब तुम पूरा कॉन्सोनेंट्स को एक एंटिटी ले रहे हैं. ये पूरा एक चीज हो गया. उसके बाद ए ई ओ, 1 2 3 4, चार चीज को 4 फैक्टोरियल में, और 5 चीज उसके अंदर खुद में 5p5 है. सो आंसर इज 4p4 into 5p5. Is this clear? It is 4p4 into 5p5. What is the answer of number 11? Okay, what is the answer of number 12? Very good. So इसमें करना क्या है, पूरा वावल्स को एक एंटिटी मान लो, पूरा कॉन्सोनेंट्स को एक और दो, वावल्स कॉन्सोनेंट्स, पूरा वावल्स पूरा कॉन्सोनेंट्स, पूरा वावल्स पूरा कॉन्सोनेंट्स, या पूरा कॉन्सोनेंट्स पूरा वावल्स. दो चीज को, वावल्स और कॉन्सोनेंट्स को कितने वे से हम अरेंज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल वेज, 2p2 वेज, दैट इज 2 ओनली. इसके बाद खुद में वावल्स के अंदर कितने चीज? 3 चीज, तो वो जहां भी रहेगा खुद में 3p3 वेज, और कॉन्सोनेंट्स 5 है तो खुद में 5p5 वेज अरेंज. सो दिस इज द क्वेश्चन वी हैव. ओके, क्लियर एवरीवन? नाउ लिसन हियर एवरीवन. 13, प्लीज लिसन हियर, डोंट दिमाग मत लगाना 13 में. अभी दिमाग लगाओगे पूरा का पूरा जो भी समझा है मिक्सअप हो जाएगा सर. 13 को रीड भी मत करना एक बार भी. अभी 13 नंबर रीड मत करना, और एक सम 13, खाली 13 बस, क्योंकि मैं पहले एक सम और कराऊंगा फिर 13 करेंगे बाद में, एंड दैट इज सम नंबर 13 करने से पहले मैं बताऊंगा बाद में नंबर 9. ओके, नंबर 9 बताऊंगा तब, नंबर 9 भी नहीं, सॉरी, इट इज नंबर 14 के बाद तब 13 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 14, नॉट 2 का 14. नाउ लिसन हियर. अब ये सिर्फ ये वाला छोड़ के नंबर 14, उसके बाद 15 और 16, ये तुम लोग का काम है. ये 3 सम ट्राई करना बस. ये सिर्फ 3 सम तुम लोग ट्राई करना. बाकी तो इसमें से एक सम में सिर्फ थोड़ा ज्यादा डाउट हो सकता है, दैट इज नंबर 16. बाकी ये दोनों हो जाएगा. सो सुनना एक बार आज की. मतलब रिलेटिव पोजीशन ऑफ वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स रिमेन अनचेंज, मतलब व्हाट मैलेनकोव में जहां पे वावल्स है, जहां वावल्स है वहां पे वावल्स ही रहेंगे, ठीक है, और जहां कॉन्सोनेंट्स है वहां पे कॉन्सोनेंट्स ही रहेगा. तो बता, बोलिए तो तुम लोग आंसर क्या होगा, कोई बता सकते हैं? रिलेटिव पोजीशन, वेरी सिंपल, 5 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल इज योर आंसर. ठीक है, तो क्यों? बिकॉज इस जगह पे कॉन्सोनेंट है, तो इस कॉन्सोनेंट की जगह पे एल, एम और एल इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन इस जगह पे वावल्स नहीं आ सकते. समझ में तो बात पूरा. देखो व्हाट मैलेनकोव में जहां पे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट वावेल, कॉन्सोनेंट वावेल, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वावेल, कॉन्सोनेंट, मतलब इन शॉर्ट जो भी कॉन्सोनेंट का पोजीशन है उस पे कॉन्सोनेंट ही सिर्फ आएगा. तो कॉन्सोनेंट्स का सीट्स कितना है? कॉन्सोनेंट्स का सीट्स कितना है? 5. इस 5 सीट्स पे 5 कॉन्सोनेंट को 5p5 में अरेंज कर सकते हैं, और इस 3 वावल्स पे 1 2 3 वावल्स पे रिमेनिंग 3p3 में. नाउ आई रिपीट वंस अगेन, प्लीज डोंट कंपेयर योर आंसर, कंपेयर लॉजिक. लॉजिक इज इंपॉर्टेंट. आई एम वंस अगेन सेइंग, ये मत बोलना इसका भी तो 5p5 है, उसके पहले का भी यहाँ पे कहीं 5p5 आया था, वैसे नहीं होता है इसका, ये चैप्टर वैसा नहीं है ना. मैं ये बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आज के लिखने रहने दो. 15 और 16 तुम लोग खुद घर पे ट्राई करना, और उसके बाद